Okay, so now let's begin the questions of collinearity. We'll talk about the questions of collinearity. So first question, very easy. We have to check, 2 points are given, 3 points are given. Check whether, write down the points 5 comma minus 2 and 6 comma 4, and we can take 7 comma minus 2. Now we have to check whether they are collinear or not. Check whether collinear. Simple logic, same order we'll consider. Let's call it A. This is 5 comma minus 2. This is B, we'll call it B, 6 comma 4. First of all, we'll assume that they are collinear. 7 comma minus 2. Okay, we'll assume it that they are collinear. Now, if they are collinear, obviously we know that AB plus BC should be equal to AC. This small little part plus this part should be equal to this bigger part. Why? Because if it is a straight line, obviously we have already seen this and imagined it that yes, it will hold true. फील करना ज़रूरी है बेटा, है ना? तो एक स्ट्रेट लाइन है, उसके दो हिस्से, अगर दो हिस्सों को जोड़ के एक बड़ा हिस्सा बन रहा है, so obviously that बड़ा हिस्सा is a straight line. Clear? So let's calculate AB. Apply the distance formula. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 the whole square. So x2 is this, so y2 is this. This becomes 4 minus minus 2 the whole square. This comes out to be 1 square plus 4 plus 2, 6, 36. This is under root 37. Clear? Now we'll calculate BC. How we will calculate BC? This time we'll call it x1, y1. We'll call it x2, comma y2 and apply the formula. So x2 minus x1 becomes 7 minus 6 the whole square plus minus 2 minus 4. And this again becomes 1 square minus 6 ka whole square is 36. So this is nothing but root 37. We have calculated AB. This is root 37. We have calculated BC, that is root 37. So ideally, if AC is a straight line, so AC should be equal to AB plus BC, that is root 37 plus root 37, that is 2 root 37. If the value of AC comes out to be this, obviously AC is a straight line. Let's calculate AC using distance formula and check whether AC is root 37 or not. This I am writing down if AC is a straight line. If AC is a straight line, then this relation shall hold true. So let's calculate AC. This becomes 7 minus 5 the whole square, because here we are, now this is x2 y2 and this is x1 y1. You can take 5 comma minus 2 also as x2 y2 and 7 comma minus 2 as x1 y1, no worries. Plus minus 2 minus 2 minus minus 2 the whole square. Calculated, this becomes 4, this cancels, and this is 2. So AC comes out to be 2 units. So now we can say that AB plus BC is equal to 2 root 37, but AC is coming out to be 2 units. Therefore, its
Therefore, A, B and C are not collinear. ठीक है, क्लियर? A, B and C are not collinear. क्लियर है ये बात? प्रूव कर लिया हमने। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आसान ही क्वेश्चन आते हैं। अब कठिन बना ही नहीं सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, क्या पूछ लेंगे तुमसे। अच्छा, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ, आशिमा, भारती एंड कैमिला। आशिमा है, भारती हैं और चमेली हैं। दे आर सिटिंग इन अ क्लास, ठीक है, दे आर सिटिंग इन अ क्लास and their positions are given. Ashima is sitting at 3,1, Bharti is sitting at 6,4 and Shamili is sitting at 8,6. These are their addresses or coordinate. The class is divided into coordinate system, Cartesian plane. Now you have to tell me, do you think that they are seated in a straight line? So let's draw coordinate system, and so 3,1 would be somewhere here, 3,1. Why I am drawing it? So that we can see that are they seated in the same order, Ashima then Bharti then Chameli, because question can change. Okay, what they can do is they can say that Chameli was sitting at 8,6 first if Chameli's information was given, so we can just see where the actual points are. So if this is the origin, so this is Ashima at 3,1, Bharti is at 6,4. So if this is 3, here it would be 6, and if this is 1, somewhere here it would be 4. Bharti is at 6,4 and Chameli is at 8,6. So furthermore, and here is Chameli. ठीक है. Now we have to tell whether they are seated in a straight line. So we have to actually tell whether this is a straight line or not. How we'll do? Same logic. If distance AB, this is, we'll rub the name. If distance AB plus BC is equal to CA, obviously it is a straight line. Again, we can apply the distance formula and solve it further. अच्छा, also they can ask, they can give you 4 points. क्वेश्चन पूछा था कि 4 points होंगे तो क्या बनेगा? अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा. अब वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है? क्वाड मीन्स 4, 4 साइड की फिगर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. तो वो क्या हो सकता है? स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रपीजियम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, क्या बच गया? पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से. तो अब जब तुम्हें इन सब की प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी, जब तुम मेंसुरेशन पढ़ लोगे, इतनी खास कोई प्रॉपर्टीज होती भी नहीं इतनी बड़ी, तो तुम इजीली प्रूव कर लोगे. जैसे स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, all the sides should be equal. ए बी सी डी स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, साथ के साथ इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे. ऑल साइड शुड बी इक्वल एंड डायगोनल शुड बी इक्वल. तो अगर तुम्हें 4 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, सपोज दे हैव गिवन यू 4 पॉइंट्स, 1,7, 4,2, -1, -1
एंड -4,4 और पूछा है, ये 4 पॉइंट्स दिए और पूछा है कि वेदर यू हैव टू प्रूव दैट, यू हैव टू चेक वेदर इट इज अ स्क्वायर और नॉट। तो स्क्वायर चेक करने के लिए याद रखना क्या चेक करना है हमें कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, साथ के साथ डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। तो मैं तो भाई हमेशा ये पॉइंट मार्क करता हूँ, जरूरत नहीं है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन इन द सेम ऑर्डर। ठीक, तो ए कहाँ होगा 1,7, 1 इसे मान लो, 7 यहाँ होगा ए कहीं, बी कहाँ होगा 4,2 यहाँ होगा, सी -1,-1 यहाँ कहीं होगा, और डी -4,4 -4,4 यहाँ कहीं होगा, मतलब ए और बी के बीच में आएगा यहाँ कहीं। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ दो, ये कुछ ऐसा बन रहा है। सही से मार्क करोगे तो एक्चुअली स्क्वायर शेप में आएगा, बट ये मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मुझे ऑर्डर पता चल जाए कि मुझे अब क्या कैलकुलेट करना है, ए बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए बी कैलकुलेट कैसे होगा, सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 प्लस 25 और ये आ जाएगा √34, मतलब ए बी की वैल्यू आ गई √34। अब बी सी कैलकुलेट कर लो, -1 -4 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, -1 -4 -5 होता है, -1 -2 -3 होता है, ये भी √34 आएगा। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे ए बी बी सी सी डी और डी ए, इसकी लेंथ भी √34 ही आएगी, ये कैलकुलेट करके चेक करना। ठीक, अच्छा तो तुमने प्रूव कर दिया कि चारों साइड्स बराबर है, इसके बाद क्या प्रूव करना है, डायगोनल ए सी निकालना है। तो अब ये एक्स ए सी कैसे निकलेगा, ये x1 y1 हो जाएगा ए और सी हो जाएगा x2 y2, और फिर बी डी कैलकुलेट करोगे, तो जब बी डी कैलकुलेट करोगे तो बी को x1 y1 मान लो और डी को x2 y2 मान लो और कैलकुलेट करके देख लो वेदर ए सी इज इक्वल टू बी डी और नॉट, एंड इफ दैट इज इक्वल सो द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, और कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसमें। तो आप लोग अपनी बुक से ट्राई करिए, और ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो नहीं समझ, एक इक्वी डिस्टेंट का भी क्वेश्चन बनता है, कर लेते हैं। इक्वी डिस्टेंट मतलब होता है सेम डिस्टेंस। तो क्वेश्चन है, नोट दिस डाउन, दैट फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, सॉरी यही फॉर्मूला लगा रहे हैं उतनी देर से, बेसिक, फाइंड द रिलेशन between x and y such that point x comma y is equidistant from 7,1 एंड 3,5। इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है, एक तो पॉइंट दिया गया x कॉमा वाई, और ये जो है ये इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे, किससे, 7,1 से और 3,5 से। ठीक है, तो ये a मान लो और ये b मान लो और ये c मान लो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन c एंड a एंड c एंड b इज इक्वल। इसका मतलब AC इज इक्वल टू CB। चलो सॉल्व करते हैं, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब let's call this as x1 y1, we are calculating AC, and let's call it at x2 comma y2. So x2 minus x1 का whole square, x minus 7 the whole square plus y minus 1 the whole square अंडर रूट, ये AC हो गया, ये CB के बराबर होना चाहिए। जब CB कैलकुलेट करेंगे तो इसको x1 y1 मान लो
और उसको x2y2 मान लो, किसी को भी कुछ भी मान लो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, मतलब x और x1 और x2 को इंटरचेंज कर सकते हो। सो दिस बिकम्स x minus 3 the whole square plus y minus 5 the whole square. क्लियर? अब क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। सो दिस बिकम्स x minus 7 the whole square plus y minus 1 the whole square equal to x minus 3 the whole square plus y minus 5 the whole square. क्लियर? अंडर रूट गायब कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14y, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, ये मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6y, नीचे लिख देता हूँ, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10y, फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब इस चीज को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। या इसको मिटा देता हूँ, यही सॉल्व कर देता हूँ। तो अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, इधर 49 है, अच्छा ये मैंने 14x होगा ना ये, और ये भी 6x होगा, ठीक है। तो 49 प्लस 1 ये हो जाएगा 50 और माइनस 14x माइनस 2y, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 25 प्लस 9 34 माइनस 6x माइनस 10y। चलो सब कुछ राइट साइड पे ले चलते हैं, तो ये 50 माइनस 34 16 हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 6x, और ये हो जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो, 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक। तो क्या फॉर्मूला, ये हो गया, सॉल्व हो गया। इसको और अच्छे से लिखना है, लिख सकते हो y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये तुमने रिलेशनशिप फाइंड कर दी, ठीक, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में आने के चांसेस रहते हैं, कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई, सीबीएसई या यूपी या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इस तरह के क्वेश्चन ये इक्वी डिस्टेंट वाले आ सकते हैं, आते हैं, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं रब करता हूँ, इसी का एक फर्दर वेरिएशन देखते हैं इसी क्वेश्चन का। एक फर्दर वेरिएशन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, इसके बाद सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे अगली क्लास से, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि यू हैव सेम इक्वी डिस्टेंट का है, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। Find the point on x-axis, write down, find the point on x-axis which is equidistant from, equidistant है कहाँ से, 2 कॉमा -5 एंड -2 कॉमा 9। तो इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, समझ में आ रहा है ना, इसको विजुअलाइज करते हैं। ये आपका कार्टेशियन प्लेन बनाया मैंने, ठीक है। एक्स एक्सिस लेटी वाली एक्सिस होती है, वाई एक्सिस सीधी वाली होती है, पता है।
तो वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5, 2, -5 यहाँ कहीं है, और एक -2, 9 है, -2, 9, -2, 9, एक पॉइंट ये ए मान लो, 2, 5 को ए मान लिया और इसको बी मान लिया, ए हो गया और ये बी हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है, वो कहीं भी यहाँ कहीं यहाँ भी हो सकता है, such that the distance between A and that point and B and that point is equal. So let's call that point as D. Let's say D is the point. अब पॉइंट है बच्चों, तो पॉइंट का क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स, एड्रेस होते हैं। तो डी के एड्रेस क्या लेंगे हम, रिमेंबर द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स वाली वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, वो पॉइंट यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, बिकॉज द पॉइंट इन ऑन is on x axis. पढ़ा था पिछली क्लास में, the point on x axis has ordinate equal to 0. The point on x axis has ordinate equal to 0. The point on y axis has abscissa equal to 0. पढ़ा था, क्लियर है। चलो भाई फिर से लगाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि a से d का डिस्टेंस और b से d का डिस्टेंस बराबर है। चलो बराबर लगा देते हैं। तो जब AD निकालेंगे तो लेट्स कॉल इट x1 y1 एंड इसको x2 y2 विल कॉल इट। नाउ x2 माइनस x1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस -5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD के बराबर। तो अब इसको x1 y1 मान लेते हैं और D को x2 y2 रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा a -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 is 0 -9 द होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट हटा सकते हैं, अंडर रूट हटा दिया, ब्रैकेट खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 25, ये क्या हो जाएगा a प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 81, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 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 8a, 4a को इधर ले आया, 81 माइनस 25 कितना होता है 56, 56, a की वैल्यू आ जाएगी -7, मतलब कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -7, 0। सो डिस्टेंस फार्मूला इसी के साथ ख़त्म होता है, इस सवाल के साथ। वेरिएशन वो कुछ इसमें ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, कोलिनियरिटी पे क्वेश्चन आते हैं, इक्विडिस्टेंट पे क्वेश्चन आते हैं, और वो पूछ सकते हैं कि वो स्क्वायर है या नहीं, आप पूछ सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो दो डिस्टेंस इक्वल आ गए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और तो इसमें कुछ बचता नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट सेक्शन फार्मूला। सो टिल देन enjoy your day, study hard, play harder, and take care. Bye bye, have a great day ahead.